So we'll start with understanding of ratio, proportion and variation. So let's start with understanding of ratio. क्या होता है ratio? Yes, it is a comparison of y. What if it is 3? 2 or more quantity. So if you have comparison of 2 or more quantity is known as a ratio, but there's a condition. The two quantities must have same units. That is important. So let us say I say 2:3. So that is how you write ratio, 2:3. So if this is 2 centimeter, for example, then this will necessarily be 3 centimeter. If it is 2 kg, then this is necessarily 3 kg. You understand? So units are important. Whenever we are comparing two quantities, they must be same units. Now this 2:3 can also be written as 2/3. 2:3 can also be written as 2/3, but 2/3 is also a fraction. So how do you distinguish between a ratio and a fraction? That is another challenge, because 2/3 is a ratio, that is 2:3, and 2/3 is also a fraction. So how do we understand? You see, let me just take you through an example. Let's say we are having a loaf of bread, let's say, and I'm dividing it into, let's say, 5 equal parts. So let's say this is 1, 2, 3, 4, 5 equal parts. Out of these 5 parts, let us say these 2 parts contain cherry. क्या हुआ? 5 parts, 2 parts contain cherry and 3 parts do not contain cherry. Right? Now, if I were to ask you this question, what fraction of bread contains cherry? The question is, what fraction of bread contains cherry? So 2/5. So 2/5 contains cherry. What fraction of bread does not contain cherry? Okay. That means whenever you are using the word fraction, this is what you call as numerator and this is what we call as denominator. This denominator is representing which part? The total part. So denominator is representing the total part. But if I were to ask you this question, what is the ratio of the bread containing cherry to not containing cherry? 2:2. The ratio of the bread containing cherry to not containing cherry, you would have cancelled this 5 and you would have written 2:3, which can also be written as 2/5. Now, this 2 is what? Part containing cherry. What is this 3? Part not contain cherry. So this is also representing part and this is also representing the part of same total. यानी ये जिस हिस्से का पार्ट बता रहा है, नीचे वाला भी उसी हिस्से का पार्ट बता रहा है. लेकिन जब हम फ्रैक्शन बोल रहे थे, तो ये मेरे को पार्ट बता रहा था और ये मेरे को टोटल बता रहा था. Right? Now, if I write 2/3 and I say it is a fraction, it means it is total. But if I say 2/3 and I talk in terms of ratio, then this is a part. Now, nobody is really going to mention this in the exam or in the question, or they are going to explicitly let us know that what is it. You will have to understand by reading the question as to what is it given. समझ में आ रहा है? इनका नॉमेनक्लेचर भी फर्क होता है. जैसे रेशियो में हम ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं. लेकिन जब हम फ्रैक्शन में ऐसा बोलते हैं या रेशियो में ऐसा बोलते हैं. रेशियो में क्या बोलते हैं? रेशियो में इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट और इसको क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्वेंट. ये होता है एंटीसीडेंट और ये होता है कॉन्सिक्वेंट. फ्रैक्शन में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इसमें एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट के नाम से हम जानते हैं. आ रही बात समझ में? ओके. नाउ so what is the simplest possible question that we can come across in terms of ratio? The simplest possible value would be, let us say I'm having a number 50. I need to split the number in the ratio of 2:3:5, say for example. So I have to split the number in the ratio of 2:3:5. हमें ये ratio है.
यानी अगर ये 2 है तो ये 3 है तो ये 5 है. नाउ देयर आर टू वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस सॉल्यूशन. इसका मतलब ये है कि इफ दिस इज 2 देन दिस इज 3 देन दिस इज 5. तो अगर ये मान लो कोई बंदा ए होता, ये बंदा बी होता, ये सी होता, टोटल कितने टुकड़े हैं मेरे पास? 10. उसमें से ए के पास कितने टुकड़े हैं? 2. तो आई वुड से ए के पास 2 टुकड़े हैं, कितने में से? 2 + 3 + 5, 10 में से. यानी अगर 10 टुकड़े होते तो होते उसके पास 2, बट मेरे पास टोटल कितने पीसेस अवेलेबल हैं? तो 50 पीसेस हैं, तो कितना मिलेगा? यूनिटरी मेथड कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके. तो क्या बनता है? 2 × 50 डिवाइडेड बाय, यही बनता है एक्स की वैल्यू. ये पता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस. 10 रुपए के 2 सेब, तो 50 रुपए के कितने सेब? यूनिटरी मेथड बोलते हैं इसको. या फिर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, 2 10 में से, तो फिर मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो नोन एज, तो फिर कितने में से चाहिए? 50 में से. इट इज द सेम थिंग. इसको बी को कितने मिलेंगे? 3. कितने में से? 10 में से. कितने में से चाहिए? 50. सी को कितने मिलेंगे? 5. कितने में से? हमें कितने में से? समझ में आ रहा है? तो ए विल गेट 2/10. 2/10 कितना हो जाएगा? 10. और ये कितना हो जाएगा? 15. ये कितना हो जाएगा? इसको जनरली पढ़ाया कैसे जाता है? इसको ऐसे कहा जाता है, मान लो ए इज टू बी स्प्लिट इन द रेशियो ऑफ बी इज टू सी इज टू डी. तो इसको कितना मिलेगा? इसको मिलेगा बी अपॉन, इसको कितना मिलेगा? सी अपॉन, इसको कितना मिलेगा? सॉरी, बी सी. हाँ ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है. ये जनरली ये 2 है. अगर ये 3 वाला है, अगर 2 वाले होते तो क्या करते? मान लो बी अपॉन बी प्लस सी इंटू ए, और इसको सी अपॉन, और अगर 4 होते तो पहले वाला डिवाइडेड बाय टोटल 4 पोर्शन इंटू मेन, जिसको स्प्लिट करना है. So this is one way of approaching a question, or in terms of if you have a number which needs to be divided in the given values. एक तरीका तो ये. The other way of understanding the same question is something like this. मान लेते हैं 50 है. I need to split in the ratio of 2:3:5. Now this is a ratio, please understand. अगर ये 2 है तो ये 3 है तो ये 5 है. हमें असली में नहीं पता ये कितने हैं. अगर मेरे पास एक 20:30:50 होता, या 20:30:50 होता, रेशियो निकालता, तो 2:3:5 ही बनता. लेकिन अगर मेरे पास 200, 300, 500 होता तो क्या बनता? तो भी तो यही बनता. 4, 6, 10 होता तो भी यही बनता. अब मुझे ये नहीं पता कि जो 2:3:5 है यहां से आया है, यहां से आया, यहां से आया, पता तो नहीं हमें. उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? हम बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर. मल्टीप्लाइंग फैक्टर वो वैल्यू है जो कैंसिल हो गई होगी जब हमने रेशियो निकाला होगा. मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है? वो चीज जो कैंसिल हो गई होगी जिसका हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाला है. तो ये कितना बनेगा? 2x, ये टुकड़ा प्लस ये टुकड़ा प्लस ये टुकड़ा, ये बनेगा. समझ में आ रहा है? 2x 3x क्या है? एक्चुअल वैल्यू हो गई. तो एक्चुअल वैल्यू को जोड़ेंगे तो ओरिजिनल वैल्यू बननी चाहिए. तो कहना इसे 10x इज इक्वल टू 50. So x इज इक्वल टू 10. हाँ सॉरी 5, 0 0 कैंसिल हो गया. तो ये वाला 2x था, है ना, 2x, ये बनेगा 10. ये वाला 3x था, ये बनेगा 15. ये 5x था, ये बनेगा 25. ठीक है. नाउ समटाइम्स इट मेक्स सेंस फॉर अस टू यूज दिस मेथड, एंड समटाइम्स इट मेक्स सेंस टू यूज दिस मेथड. ठीक है. सो लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन. लेट्स सी इफ यू आर एबल टू हैंडल. A number was broken into 2 parts such that the ratio of the 2 parts is 3:5. The difference between the 2 parts is 45. What is the original number?
इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इजी बना देता हूँ, ये लो। ओरिजिनल नंबर तो एक ही होगा या दो होंगे? हाँ जी, दो आ रहे हैं। दो क्या निकाले हैं तूने? दोनों टुकड़े निकाले हैं ना, तो ओरिजिनल नंबर का ही तो टुकड़ा है वो। तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा? तूने दो टुकड़े निकाल दिए, किसके टुकड़े हैं? किसी के तो होंगे। तो ओरिजिनल नंबर क्या है? नहीं कराना है? अच्छा, मैथ नहीं है? अच्छा, क्या गलती है? एक नंबर है, दो हिस्सों में तोड़ दिया, उसका रेशियो 3:5 है। ये एक्चुअल नंबर, ये 3x हो गया, तो ये 5x हो गया। इसका डिफरेंस आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2x = 40, x की वैल्यू 20। अब ये टुकड़े ही तो हैं, 60 और 100 टुकड़े ही तो हैं। किसके टुकड़े हैं? इस नंबर के। तो ये नंबर क्या रहा होगा? उसी को तो दो हिस्सों में बांटा है। तो ओरिजिनल नंबर क्या है भाई? 160 को जब दो हिस्सों में बांटेंगे, 100 और 180, उन्हीं का डिफरेंस तो ये मिलेगा आपको 40। यही तो लिखा है। आया समझ में? मेकिंग सेंस? ओके। ओके, टेल मी, लेट्स, you are carrying a dozen eggs and you happen to fall down. Some of the eggs broke and some did not. Which of the following is not possible a ratio for broken eggs is to unbroken eggs? Which of the following is not possible a ratio? Possible a ratio या possible ratio ये भी कह सकते हो। Following is not possible ratio for broken eggs is to unbroken eggs, यानी broken eggs, ये रेशियो मान लो इसको। हैं? क्यों? नॉट पॉसिबल। हाँ, व्हाट इज योर आंसर? तुम्हारे पीछे। क्यों?
हाँ जी, व्हाट इज योर आंसर? क्यों बनी बा? हाँ भाई, तुम्हारा दोनों का नहीं बना? अच्छा, हमारे पास 1 दर्जन मतलब क्या होता है पहले बताओ? पक्का? तो मेरे पास 12 अंडे हैं। आप नाका झांकी कर रहे थे इधर उधर और गिर गए, अंडे लेके जा रहे हो, तो कुछ अंडे फूट गए, कुछ बच गए। कह रहा है इनमें से ऐसा कौन सा रेशियो है जो पॉसिबल नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है? किस चीज का रेशियो? ब्रोकन एग्स इज टू अनब्रोकन। तो मान लेते हैं 12 अंडे हैं, मैं कहता हूं 1:1, ये ब्रोकन टूट गए, ये अनब्रोकन है। क्या ये हो सकता है? कैसे? 1/2 × 12 और ये 1/2 × 12, तो ये 6 अंडे टूट गए, 6 अंडे बच गए, तो ये पॉसिबल है। तो ये तो मेरा आंसर नहीं है, क्योंकि हमें क्या चाहिए जो पॉसिबल नहीं है। ये वाला हो सकता है? क्योंकि 1/3 हो जाएगा और ये 2/3 हो जाएगा। हो सकता है ना? क्या ये हो सकता है? तो ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। ठीक है भव्या, बिल्कुल। अब क्या हमें ये सब कुछ एग्जाम में चेक करना चाहिए ऐसे? नहीं, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल। हम एग्जाम में ये सब कुछ नहीं करने वाले हैं। क्यों? ये तो बहुत टाइम टेकिंग लग रहा है ना। अब बेसिकली मतलब ये है कि जो 12 है वो डिवाइड होना चाहिए इसके सम से। देखो, जैसे 1:1 का क्या मतलब है? 1/2 × 12, यानी 12 जो है 2 से डिवाइड होना चाहिए। इसमें क्या बनेगा? 1/3 × 12, तो यानी ये 12 3 से डिवाइड हो रहा है, 12 4 से डिवाइड होगा, वो तो ये भी ये डिवाइड होगा, ये भी होगा, 1/6 से डिवाइड होगा, ये डिवाइड करेगा 12 को, तो ये आंसर है। एग्जाम्पल के तौर पे 12 को मान लो अपन 1:4 में करते हैं, तो ये क्या बनेगा? 1/5 × 12, और ये कितना बनेगा? अब व्हाट इज 1/5 × 12? 2.4, और ये कितना बन जाएगा? 9.6। तो कितने अंडे टूट गए इसके हिसाब से? 2.4, और वहां कितने अंडे बच गए? क्या ऐसा हो सकता है कि 2.4 अंडे टूटे? या तो अंडा पूरा टूटेगा या नहीं टूटेगा, अनलेस आप ये कहो कि सर हमारी स्पेशल मुर्गी है, फ्रैक्शनल अंडे दे देती है कभी कभी, आपको क्या पता, आपका क्या लेना देना, तो अलग बात है। अदर देन दैट, अंडा जो है वो इंटीग्रल है। ठीक है, तो इसका मतलब है कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, या तो टूटेगा या नहीं टूटेगा। दैट इज हाउ इट इज टू बी अप्रोच्ड। समझ में आ रही बात कैसे हैंडल करना है इसको? ओके। तो ये इसकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है, मतलब जो हमने रेशियो पढ़ा है उसकी एप्लीकेशंस पे क्वेश्चंस मिलेंगे हमें, वो हमें समझनी चाहिए इस बात को। ठीक है। अब एक टाइप ऑफ और क्वेश्चन आता है इसमें, एक तरीके से और क्वेश्चन आता है। अभी क्या, अभी तो क्या हमने देखा कि किसी एक नंबर को हमें 2-3 हिस्सों में बांटना है और उसकी एक्चुअल वैल्यू निकालनी है, उससे से एसोसिएटेड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है, मान लेते हैं मेरे पास नंबर है A:B, इसका रेशियो 2:3 मान लो। इसका मतलब अगर A की वैल्यू 2 है तो B की वैल्यू 3 है। एक और नंबर है, मान लेते हैं B:C, उसका वैल्यू, उसका रेशियो भी 2:3 है। अपने को A:C चाहिए, कैसे करेंगे? हैं? हमें तो A:C चाहिए। कैसे कर रहे हो? यूनिटरी मेथड? नहीं आएगा यूनिटरी मेथड से। हाँ, वो भी कर सकते हो, हाँ कर लो। फोर इज टू नाइन। तुमने बी निकाला इसमें? तुमने बी की वैल्यू निकाली है या नहीं निकाली है? ओके। So whenever you have to find out the first and the last, it is very easy because A:B can be written as A/B. B:C can be written as B/C.
If you multiply, can I say BB gets cancelled and I get A upon C, which is same as A is to C. चलेगा? हमें A is to C चाहिए, हमें A is to B दिया हुआ है और हमें B is to C दिया हुआ है. क्या मैं A is to B को A by B लिख सकता हूं? क्या मैं B is to C को B by C लिख सकता हूं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है दोनों में. अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं दोनों को तो ये कैंसिल हो जाएगा. तो क्या आएगा? A by C आएगा. A by C को क्या मैं A is to C लिख सकता हूं? तो आंसर आना चाहिए. है? ओके. हाँ बिल्कुल पॉसिबल है. तो नहीं आना चाहिए. Let us look at what is A by B. What is B by C? Now, as per above value, if I multiply, I should get answer. And this is actually the answer. Now, the question here is, how are we getting this answer? 4/9 ही निकाला है ना, वही आंसर आ रहा है. अब दिक्कत क्या है? देखो, दिक्कत ये है कि यहां पे B और B कट गया और यहां तो नहीं कट रहा. ये कटा क्यों? क्योंकि इसकी शक्ल जो है और इसकी शक्ल जो है वो मिलती है, सेम सेम शक्ल है, तभी कटा है. लेकिन यहां तो इसकी शक्ल नहीं मिलती है. अगर शक्ल मिलानी है तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि इसमें ऊपर 2 मल्टीप्लाई करूं, नीचे 2 करूं? एक रेशियो में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से क्या रेशियो पे फर्क पड़ेगा? पक्का ना, कोई फर्क नहीं. ऐसे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर और इसको नीचे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. अब क्या इसकी शक्ल और इसकी शक्ल सेम है? इसका मतलब कटेगा. आ गया 4:9. अब एग्जाम में हमें शक्लें सेम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा आपका. ये शॉर्टकट है. ये समझा रहा हूं क्यों आएगा, लेकिन आएगा. अब मान लो एक और होता, C/D होता और वो भी 2:3 होता और हमें A/D निकालना है. क्या आपको सब कुछ करने की जरूरत है? आपको सिर्फ सबको मल्टीप्लाई करना है. जैसे A by B, B by C और C by, यही चीजें हैं. आपका आंसर आ जाएगा क्योंकि ये कटेगा. A by D है. 2/3 into 2/3 into 2/3, ये आंसर है. दिखाए ना, सेम कर सकते हैं हम हमेशा. ऊपर ये देखो, सेम कहाँ था? ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई किया, यहाँ 3 मल्टीप्लाई किया, इसकी वैल्यू सेम कर दी तो कट गया. हाँ, बट मैं ये कह रहा हूँ एग्जाम में नहीं करने की जरूरत है, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा. जब भी दो ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको कंपाउंडिंग बोलते हैं, कंपाउंडिंग ऑफ अ रेशियो. हम एक्चुअली कंपाउंडिंग कर रहे हैं. इसको क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंपाउंडिंग. इफ समबडी आस्क्स यू, अभी चलो बाद में बताता हूँ कंपाउंडिंग फिर से. कभी भी दो रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं ना, ऊपर वाला ऊपर वाले से, नीचे वाला नीचे वाले से, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंपाउंडिंग. ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंपाउंडिंग. अब ये तो तब है जब हमें फर्स्ट और लास्ट निकालना था. ये कब है? जब हमें फर्स्ट और लास्ट निकाल. लेकिन अगर हमें A/B/C/D निकालना है, अभी तो फर्स्ट और लास्ट निकाला हमने, बट एग्जामिनर बोलता है ना, मुझे तो A/B/C/D सबकी रेशियो चाहिए. नाउ वी आर इन ट्रबल. अब तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन से काम नहीं चलेगा, अब अपने को पूरा मेथड समझना पड़ेगा. अब अगर हमें A/B/C/D निकालना है तो हम सारा इकट्ठा कभी भी नहीं निकाल सकते. हमें पहले फर्स्ट 3 का निकालना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट 4 का. अगर 5 होता तो पहले 3 का निकालते, फिर अगले 1 का निकालते, फिर अगले 1 का निकालते. कैसे निकालेंगे? अब हमें क्वेश्चन यही है,
A:B की वैल्यू पता है कितनी है, 2:3, और B:C की वैल्यू पता है 2:3। अब अगर मुझे A के साथ B चाहिए और B के साथ C चाहिए, प्रॉब्लम ये है जब हम A के साथ B लेते हैं तो ये रेशियो 2:3 बनता है, और B के साथ C लेते हैं तो भी 2:3 बनता है। पहले वाले में B तो 3 से रिप्रेजेंट हो रहा है और दूसरे वाले में 2 से रिप्रेजेंट हो रहा है, और इस सिस्टम में B को क्या होना चाहिए, कॉमन। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, B को कॉमन बनाना पड़ेगा। हाउ डू यू मेक इट कॉमन? B के नीचे 2 है ना, नीचे वाले से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो और ऊपर वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करो। एलसीएम है बेसिकली। अगर ये 4 बनेगा तो ये 6 बनेगा, और नीचे वाला B:C, ये 6 बनेगा तो ये, अब जब A की वैल्यू 4 है तो B की वैल्यू 6 लिख सकते हैं अपन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट वन। जब B की वैल्यू 6 है तो C की वैल्यू 9 लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड वन। समझ में आ रहा है? फर्स्ट वन ये है, B की वैल्यू 6 ये आ गई अकॉर्डिंग टू फर्स्ट वन। अकॉर्डिंग टू सेकंड वन 6:9 है, अकॉर्डिंग टू सेकंड वन 6:9 है। आ रही बात समझ में? अब अगर A:C चाहिए तो आंसर क्या आ गया, 4:9, जो अपन ने शुरू में निकाला था। कहीं निकाला था ना, 2/3 2/, ये निकाला हुआ है। समझ में आ रहा है हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो कॉमन पॉइंट है उसको मल्टीप्लाई कर करा के कॉमन बनाना पड़ेगा, तभी जाके आंसर आएगा। अब हमारे पास A:B:C आ गया। अब मेरे पास क्या आ गया, A:B:C कितना आ गया, 4:6। लेकिन अपने को क्या निकालना है, A:B:C भी निकालना है। तो यहाँ पे C और D की वैल्यू क्या है, 2:3। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 9 को। यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2। हमें क्या करना है, सेम। कैसे करूं सेम, इसको किया मल्टीप्लीकेशन बाय 2 और इसको किया मल्टीप्लीकेशन बाय 9। समझ में आ रहा है? अब वापस इसको यहां लिखते हैं, A:B:C। A की वैल्यू अगर 8 है तो B की वैल्यू 12 है, तो C की वैल्यू 18 है। C की वैल्यू अगर 18 है तो D की वैल्यू 27। यानी आई कैन रिप्लेस दिस सिंगल वैल्यू, है ना, A:B:C:D। तो ये 8 है तो ये 12 है तो ये 18 है, 18 है तो ये 27 है। A:B:C:D तो कितना बन गया, 8:12:18:27, ये आंसर है। कर लोगे यहां तक, समझ में आ रही बात? ओके। ग्रुप पे हैं सभी लोग, तुम लोग 23, ठीक है। और होता, अच्छा मान लेते हैं अपने पास D/E है 2/3, ठीक है। तो यहाँ अपना 2/3, ये D है और ये E है। अब हमें क्या सेम करना है, D सेम करना है। इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, ऊपर वाले को 2 से, नीचे वाले को किससे करूं 27 से, फिर हो जाएगा। एक कहोगी तो डायरेक्ट आंसर तो मैं बता ही सकता हूं। हाउ, मान लेते हैं हमारा, ये ठीक है, हो जाएगा ये मल्टी। मान लो अपना ये आ गया 4:6:9 आ गया, और वापस 2:3 है मान लो। अपने को आंसर चाहिए ना, ये इसमें मल्टीप्लाई करो कितना बनेगा 8, ये इसमें मल्टीप्लाई करो कितना बनेगा, ये इसमें मल्टीप्लाई करो कितना बनेगा, ये इसमें मल्टीप्लाई करो कितना बनेगा, ये रहा आंसर है। हाँ तो बस, तो एक सीधा आंसर लिख रहे हो मल्टीप्लाई करके। ये याद कैसे रखोगे,
देखो तब तक हम काम करेंगे जब तक कोई काम हमारे सिर नहीं आता, है ना। जैसे ही काम हमारे सिर आता है हम दूसरे के सिर मांड देते हैं। 27 ऐसे याद कर सकते हो। अब इसके आगे भी करना है 2:3, सेम लॉजिक जो तुम पूछ रहे हो। मल्टीप्लाई करो, मेरे सिर आया मैं दूसरे के सिर लगा दूंगा, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ओके, मैं एक बार आपको ना अभी व्हाट्सएप कर रहा हूँ ग्रुप पे। मैं चाहता हूँ पहले ये सब क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन करो, फिर मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। पहले पहले 10 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अभी आपको इसकी दूसरी 10 क्वेश्चन करो पहले। ऑनलाइन मैंने अभी ना आपको क्वेश्चंस भेजे हैं, उस पे आप क्वेश्चंस करो पहले। वहां तक तुम पहुंचे ही नहीं है, और कर लिया क्या तुमने? 10 करने थे। Okay, so let us look at this question number 10. The question number 10 says the ratio of two numbers, the ratio of two natural number is 5:6. यानी कि अगर ये 5 है तो ये 6 है, तो एक्चुअल नंबर ये 5x होगा तो ये 6 होगा, मान सकते हैं। फिर बोलता है इफ अ नंबर इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, यानी एक नंबर ये एक नंबर है, कुछ ऐड कर दिया, मान लो मैंने k इसको ऐड कर दिया और k इसको ऐड कर दिया। फिर बोलता है द रेशियो बिकम 7:8। अब नया रेशियो क्या बन गया, यानी ये नंबर हो गया नया और ये नंबर हो गया नया, इसका रेशियो 7:8। ये समझ में आ रहा है क्वेश्चन? पहले क्या रेशियो था? 5:6। ओरिजिनल नंबर था 5x और 6x, इसमें हमने कुछ कुछ ऐड किया तो नया रेशियो बन गया 7:8। अब बोल रहा है इफ द लार्जर नंबर एक्सीड्स द स्मॉलर नंबर, जो बड़े वाला नंबर है वो छोटे वाले नंबर से 10 ज्यादा है, तो बड़े वाला नंबर क्या है 6x और छोटे वाला नंबर क्या है 5x, तो ये बड़ा होगा कितना ज्यादा है, x की वैल्यू आ गई 10, तो नंबर कितना बनेगा 50 प्लस k 60 प्लस k इज इक्वल टू, यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सॉल्व इट ऑल्सो। क्या यही था? हाँ भाई, फिफ्थ वाला तेरा गलत क्यों है? $75 कैसे? ये कह रहा है रेशियो ऑफ एजेस ऑफ अरुण, ब्रह्मा एंड चारी is 5:4:3। इफ ब्रह्मा's एज इज 28, इसकी उम्र 28 है, तो पूछा है देन द सम ऑफ द एजेस ऑफ द 3 पर्सन, तीनों की एज जोड़नी है। इसकी एक्चुअल एज 5x, इसकी 4x, इसकी 3x, तो 4x किसके बराबर दे रखा है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, तो इसकी किसकी, अरुण की इसकी एज क्या है, इसकी और इसकी है, अच्छा 7×12 लिख रहा है क्या? हाँ तो फिर उल्टा लिखना है, 21 लिख उसको, आ जाएगा।
ठीक है, और किसी की कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं है? तो अब मैं कराता हूं आपको प्रोपोर्शन। ठीक है, okay, so let's move down to the next idea, and the next idea is proportion. नेक्स्ट आइडिया इज प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो हम जनरली इकट्ठे यूज करते हैं दोनों टर्म्स को। तो प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शन का मतलब होता है अ स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज। क्या होता है? अ स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज। क्या मतलब है? मान लेते हैं मेरे पास एक रेशियो ये है A:B, और दूसरा रेशियो है मेरे पास, मान लेते हैं C:D। दो रेशियो हो गए। अब एक ऐसी स्टेटमेंट जो ये बोले कि ये दोनों बराबर हैं, दोनों रेशियो को हमें क्या करना है? बराबर। इस टाइप की जो रिप्रेजेंटेशन है ना, उसको प्रोपोर्शन बोलते हैं। अब इसमें जो इक्वल टू का साइन है ना, इसकी जगह अपन 4 बिंदी लगा सकते हैं ऐसा। दिस साइन इज नोन एज प्रोपोर्शनैलिटी। This is a symbol of proportionality. So A:B is proportional to C:D. समझ में आ रहा है? A:B is proportional to C:D. अब इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू है तो A/B भी लिख सकते हैं, ये भी चलेगा। ये तीनों एक ही चीज है। ठीक है, अब जब हम इसको ऐसे लिखते हैं A:B is proportional to C:D, इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट प्रोपोर्शन। इसको क्या बोलेंगे? सेकंड प्रोपोर्शन। इसको क्या बोलते हैं? और इसको क्या बोलेंगे? समझ में आ रहा है? फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, अब चूंकि मैं इसको A/B इज इक्वल टू C/D लिख सकता हूं, कैन आई से आई कैन क्रॉस मल्टीप्लाई दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, चलेगा? दैट मीन्स A इंटू D is equal to B into C. Now, if you look at A and D, they are far away, दूर दूर हैं. That is why it is known as extreme values. It is known as extreme value. और अगर हम इनकी बात करें तो ये पास पास हैं, and therefore it is known as mean values. तो जो दूर वाले हैं उनको क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम वैल्यूज, और जो पास वाले हैं उनको क्या बोलेंगे? मीन वैल्यू। ठीक है, अब हमने क्या ऑब्जर्व किया? यहां पे और यहां पे क्या ऑब्जर्व किया? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। समझ में आ रहा है? हमने क्या ऑब्जर्व किया? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये आपका रिजल्ट है। यानी जो दोनों वाली दूर वाली वैल्यूज हैं वो आपको देनी पड़ेगी। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो यहां तक समझ में आता है? तो प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब है अ स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 प्रोपोर्शन हो गए हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमने देखा कि जो दोनों दूर वाली वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई करके बीच वाली वैल्यूज के बराबर होगा। देन
Now what is the kind of question that we will get in the exam? Now that is the next idea कि किस टाइप के हमें क्वेश्चंस को अप्रोच करना है. मान लेते हैं मैं एक डिक्टेशन दे देता हूं, मतलब क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे अपन, और फिर देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा. Three proportions are given as 2, 3 and 4. Find the fourth proportion. Three proportions are given as 2, 3 and 4. Find third proportion. Find second proportion. अब अपने पास तीन प्रपोर्शन है, 2, 3 एंड 4. पहले वाले क्वेश्चन में फोर्थ निकालना है, दूसरे वाले में थर्ड निकालना है, और तीसरे वाले में सेकंड निकालना है. कैसे करोगे? हैं? हाँ लगाओ. कैसे कैसे लगाओगे? हैं? इसमें ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है, डी कौन सा है, ये कैसे पता लगेगा? हैं? क्यों? और उल्टा नहीं हो सकता? आगे पीछे नहीं हो सकता? अब तीन प्रपोर्शन दिए, बिल्कुल सही कह रहे हो. अब आपको, हमें ये नहीं पता ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है, लेकिन जिस ऑर्डर में दिया है ना उसी ऑर्डर में लेना चाहिए. हमें किस ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में दिया, हमें पता है अगर 4 वैल्यूज होती तो A is to B is proportional to C is to D होता. तो फर्स्ट प्रपोर्शन इसमें क्या है? 2. सेकेंड प्रपोर्शन 3 इज प्रोपोर्शनल टू फिर 4, और फिर X ही अननोन है. समझ में आ रहा है? इसी ऑर्डर में लेना है. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन होगा. तो 2 into X इज इक्वल टू 3 into 4. अब अगर आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो, अब चूंकि हमें यहाँ फोर्थ निकालना था तो हमने फोर्थ को X माना. यहाँ कौन सा निकालना है? थर्ड. तो थर्ड को हम X मानेंगे. समझ में आ रहा है? तो हमारा रेशियो कैसे बनेगा? 2:3 इज प्रोपोर्शनल टू, इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट. तो कितना बन जाएगा? 3x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू. ऐसे ही इस वाले केस में सेकेंड प्रोपोर्शन को क्या मानेंगे? x. अगर फर्स्ट होता तो फर्स्ट को x मानते. तो जो अननोन क्वांटिटी है हम उसको x मान लेते हैं और बाद में उसी रेशियो में हम मूव करा देते हैं. तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3x इज इक्वल टू 8. इंसिडेंटली x इज इक्वल टू 8/3. सेम आ रहा है. ये बात समझ में आ रही है? तो जिस ऑर्डर में दिया गया है उसी ऑर्डर में अपने को वैल्यूज लिखनी है, और जो क्वांटिटी अननोन है उसी को हमको x मानना है. ये बात क्लियर है? तो एक कुछ टाइप के क्वेश्चंस तो अपने ऐसे बनते हैं. फिर इसमें एक क्वेश्चन ये बन जाता है, लेट्स से मैं वापिस एक बार टाइप कर देता हूं क्वेश्चन. Two proportions given are 3 and 4. Find third proportion. Two proportions given are 3 and 4. Find mean proportion. Okay. Now, before you do this, let me ask you a question. Let's say I am writing A is to B is proportional to B is to C. Which is this proportion? First. This one, this one,
it is also second, and this is known as continued proportion. कंटिन्यूड का मतलब ए से बी चला और फिर बी से सी पहुंच गया, ए से बी चला और फिर बी से सी, कंटिन्यू कर रहा है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब इसमें कितने प्रोपोर्शन है, 3। इसका मतलब है अगर हमसे कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जहां हमें ये पता लगता है कि इसमें 3 ही प्रोपोर्शन है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है वो प्रोपोर्शन कंटिन्यूड नेचर में, एग्जामिनर नहीं बताएगा अपने को, वो उसने क्या बोला, उसने बोला कि कैसे, जैसे क्वेश्चन दिया इसमें 2 प्रोपोर्शंस आर गिवन और क्या निकालना है अपने को, थर्ड। इसका क्या इंटरप्रिटेशन है कि देयर आर 2 दिए, तीसरा निकालना है, इसका मतलब क्या है, 3 ही प्रोपोर्शन है। इसका क्या मतलब है, 3 ही प्रोपोर्शन है। अगर 3 ही प्रोपोर्शन है वो तभी एग्जिस्ट करेंगे जब वो कैसा होगा, कंटिन्यूड होगा। आ रही बात समझ में? तो ये हमें by virtue of our knowledge we should know this. The examiner is not going to tell anything, he's simply going to give us this question. Now try to tell me what is the answer. first proportion क्या बनेगा, 3, very good। नेक्स्ट क्या बनेगा, नेक्स्ट क्या बनेगा, और नेक्स्ट क्या बनेगा, आप बताओ। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। क्लास है क्या तुम्हारी, बस 2 मिनट और दो, ठीक है। एक्स की वैल्यू 60, अगर ये बस ये क्वेश्चन कर लो फिर चले जाना। 2 प्रोपोर्शंस गिवन आर 3 and 4, मीन प्रोपोर्शन निकालना है, यानी कौन सी वैल्यू निकालनी है, बीच वाली वैल्यू। तो बीच, इसका मतलब है पहले 3 फिर x is to, अब जाओ समझ में आ गया, x square is equal to 12, x is equal है, प्रोपोर्शन की डेफिनेशन यही है। वो इक्वल हो गया ना, a is to b is to c is equal to c is to d is to e। व्हाट इज द मीनिंग, मतलब वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या एसेंस क्या है उसका, सेंस क्या बन रही है। हाँ तो रेशियो तो इक्वल टू हो गया ना बेसिकली, नहीं उसको प्रोपोर्शन नहीं बोलते हैं। वो तो इक्वल टू हो गया। हाँ तो इसको 2 रेशियो के रेशियो को बोलते हैं, इसमें तो जैसे फॉर्मूला लग रहा है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, उसमें कुछ नहीं लगेगा ना। हाँ उसमें लगा के देख ले, 3:4:5 = to 5, तो किसको किससे मल्टीप्लाई करेगी, क्या रिलेशनशिप, कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो तो स्टेटमेंट। proportion is the ratio, proportion is equation between 2 ratios, basically equality of 2 ratios, equality of 2 ratios। जो तुम कह रही हो equality of 3 ratio बोल रही हो, या फिर equality of 4 ratio, that is just an equality, you cannot call it as a proportion, that's what I'm saying। क्या हुआ, तेरी भी ट्यूशन है क्या, ट्यूशन है कोई, और क्या पढ़ाना नहीं है, और बोलो समझ में आया, रेशियो प्रोपोर्शन समझ में आया।
अगली क्लास में हम इसका थोड़ा कुछ क्वेश्चन देखेंगे और वेरिएशन करेंगे इस पे, ठीक है। हाँ बेटा समझ में आया तुम्हें? चलिए ठीक है, देन दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे गाइस। हाँ जी भव्या, कुछ पूछना है तुम्हें? हाँ बेटा ले। भव्या कुछ पूछना है? सर आवाज नहीं आ रही, मैसेज डाल दो। नहीं है तो ठीक है, फिर वी कैन रैप इट अप। ओके बेटा बाय।